Good morning, students. Welcome to the e-learning class of Social Science of Standard 7th. Today we are going to continue from second semester textbook, chapter number 9, in that part 2, and the name of the chapter is India Social Life. Let us start now. Now today we are going to learn social life of the people of South India. Now the people of South India, they are benefited by a long sea coast. It means those people who are living in South, they are benefited by a long sea coast. They are short and sturdy in build. Those people who are living in South, they are mostly short in height and sturdy. Sturdy means they are strong in their build up. Rice is the staple diet, with fish being an integral component of coastal South India. उनका मेन खाना क्या है? What they used to consume? They used to consume rice and fish. They prefer to eat on banana leaves on all important occasions. आपने देखा होगा उनकी जो important festivals होती है, शादी या functions होते हैं, उस टाइम पे you might have noticed जो South Indian people होते हैं, they used to eat on banana leaves. Idli, dosa, sambar, vada are some of the famous food items. We all know that. South Indian cuisine is very well known and popular. It's a very famous and it's very popular cuisine. South Indian women traditionally wear the sari and adorn their hairs with sweet smelling garlands of flowers. Now South Indian women, they traditionally they wear saris and they adorn means they make their hair attractive by wearing sweet smelling garlands of flowers. क्या लगाती वो अपने बालों में? We have noticed that they are wearing the gajra. The men, they wear either a white dhoti or a colorful lungi. और जो साउथ इंडियन मैन्स होते हैं, what they used to wear? They used to wear a white dhoti or a colorful lungi. The fishermen wear clothes to suit their occupation. And fishermen किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं? जो उनकी ऑक्यूपेशन को सूट करते हैं. Now the houses, they are made of brick, wood, bamboo, stone and mud. साउथ इंडिया में घर कैसे बने होते हैं? साउथ में they are made of brick, wood, bamboo, stone and mud. They have slopy roof as it's rain heavily in these areas. Slopy means slanting roof. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. People residing near the coastal areas live in they live in huts. Now the bamboo furniture is used in these houses are beautifully made. जो फर्नीचर बना होता है वो किससे बना होता है? बैम्बू से. सो इट इज़ looks really beautiful. House boats are seen in the backwaters of Kerala too. Different languages are spoken in southern India. We have noticed that South India में अलग अलग languages बोली जाती है. English and regional languages like Tamil, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ आर वाइडली स्पोकन. वो लोग कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं? दे आर स्पीकिंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज. रीजनल कौन सी है? दैट इज़ तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़. दे आर वाइडली स्पीकिंग दैट लैंग्वेज. नाउ फेमस फॉर देयर पैशन फॉर रिलीजियन, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड कल्चर, पीपल लिविंग इन साउथ इंडिया फॉलो अ वेरी रिचुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल. हमने देखा है जो साउथ के लोग हैं वो लोग बहुत पैशनेट होते हैं. किसके लिए? अपने रिलीजन के लिए, अपने ट्रेडिशंस के लिए, अपने कल्चर के लिए, एंड वो सारे रिचुअल्स अच्छे से फॉलो करते हैं. देयरफॉर फेस्टिवल्स ऑफ साउथ इंडिया मेक देम पॉपुलर ऑल ओवर द ग्लोब. इसीलिए उनकी जो भी फेस्टिवल्स है वो बहुत फेमस हैं. ओनम, पोंगल, बोट रेस, दशहरा एंड दिवाली, दे आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथुसियाज्म. In South, all these festivals, that is Onam, Pongal, boat race, Dasara and Diwali, they are celebrated with a great enthusiasm. Means बहुत जोश से मनाए जाते हैं. मोहिनी आथम and Kathakali of Kerala, Bharatnatyam of Tamil Nadu and Kuchipudi of Andhra Pradesh are very famous dances of South India. All these are the forms of dances and they are very famous dances of South India. Now farming and fishing, they are the major occupations of the people of South India. Now paddy, it is a main crop of this region. Now people, they seek their livelihood through industries in the urban areas too. Means जो लोग अपना
लाइवहुड है वो किस तरीके से अर्न करते हैं, थ्रू इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज टू. Now, South Indian culture, with its visible difference in custom and traditions, forms an important part of Indian culture. It means South India के जो customs हैं उसमें और culture में, customs में, traditions में difference है, but still it is an important part of our Indian culture. Now we are going to learn about social life of the people of East India. Now most of the people of East India, they live in रूरल एरियाज. हमने देखा है जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स होते हैं ईस्ट इंडिया के वो कहाँ रहते हैं, दे लिव इन रूरल एरियाज. सिंस द रीजन इट कंप्राइजेस ऑफ माउंटेन्स, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड वाइडली. इट मीन्स जो रीजन है उसमें क्या है, ज़्यादातर माउंटेन्स होते हैं, इसके लिए वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर ज़्यादा की जाती है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ टी. नाउ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज़ राइस एंड फिश. उनका मेन खाना क्या है वहाँ पे, दैट इज़ राइस एंड फिश. बट बिसाइड्स दैट, उसके अलावा दे यूज टू कंज्यूम पल्सेस एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो. रसगुल्ला, द फेमस चीज बेस्ड सिरप डेजर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी ऑल नो दैट इज़ द चीज बेस्ड सिरप है, डेजर्ट है जो वेस्ट बंगाल का, इट इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ पीपल दे प्रेफर टू वेयर कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ्स एज द रीजन फेसेस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. वहाँ पे किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, दे यूज टू प्रेफर कॉटन एंड एंकल लेंथ क्लोथ्स एज दिस एरिया इट फेसेस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. नाउ पीपल आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट. जो ईस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं दे आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट. मैन वेयर द धोती कुर्ता वाइल वुमेन ड्रैप देयर साड़ीज इन अ ट्रेडिशनल पैटर्न. मैन, वहाँ के मैन कौन से कपड़े, किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, दे यूज टू वेयर धोती कुर्ता, वाइल वुमेन दे यूज टू वेयर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ साड़ीज. मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया दे आर मेड ऑफ बैम्बू वुड बट ऑल्सो सम आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट. मीन्स जो मोस्ट ऑफ द हाउसेज है ईस्टर्न इंडिया में वो किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बैम्बू एंड वुड. बट कुछ घर ऐसे हैं दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट ऑल्सो. Now tribals in forest area they live in hut spread over the forest areas. जो tribals हैं जो forest areas में रहते हैं they used to live in hut which is spread over the forest areas. Now the houses they are having slopy roof due to the excessive rain. Again the same thing, उनकी छतें कैसी होती है, they are slopy or you can say slanting. Why? Because वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है. The backyards of the most of the houses have small ponds known as पुक्कुर. जो बैकयार्ड्स है घर के जो पीछे वाली एरिया है उसमें स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, उसका नाम क्या है, पुक्कुर. इन विच पिसिकल्चर मीन्स फिश ब्रीडिंग कल्चर इज प्रैक्टिस्ड. असमी, बंगाली एंड ओरिया दे आर कॉमनली स्पोकन बाय द पीपल ऑफ ईस्टर्न इंडिया. कौन सी लैंग्वेजेस वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, दे आर मोस्टली स्पीकिंग असमी, बंगाली एंड ओडिया. हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोक और ऑल्सो स्पोकन मार्जिनली. नो मेनी फेस्टिवल्स ब्राइटन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ दीज रीजन्स. वहाँ पे काफ़ी सारी फेस्टिवल्स खुशी से मनाई जाती हैं. बिहू एंड ओजपली द फोक डांसेस ऑफ असम आर वेरी फेमस. कौन से टाइप के डांस, फोक डांसेस ऑफ असम दे आर वेरी फेमस, दे आर नोन एज बिहू एंड ओजपली. दे आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ असम आर very popular or famous you can say. India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religion of their choice. Means India believe करता है सेक्युलरिज्म में. सेक्युलरिज्म मीन्स धर्म निरपेक्षता. मीन्स इंडियन लोगों को राइट है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं. एंड इंडिया ऑफर्स एस्टाउंडिंग वैरायटी इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. मीन्स इंडिया हर एक चीज़, हर एक सामाजिक पहलू में एक विभिन्नता ऑफर करती है. डाइवर्सिटीज ऑफ एथनिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल, इकोनॉमिक, रिलीजियस क्लास एंड कास्ट ग्रुप क्रॉस कट इंडियन सोसाइटी. मीन्स हमको इतनी सारी विभिन्नता मिलती है किसमें, लिंग्विस्टिक, एथनिक, रीजनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, क्लास एंड कास्ट ग्रुप. एंड ये सब इसको प्रेजेंट करते हैं, इट्स प्रेजेंट्स द इंडियन society which is also permeated with immense urban rural differences and gender distinction.
इट मीन्स इसमें अर्बन और रूरल डिफरेंसेस भी आ गए और जेंडर डिस्टिंक्शंस भी आ गए. A variety of languages and dialects are spoken here. हमारी कंट्री में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारी वेराइटीज बोली जाती है, लैंग्वेजेस एंड डायलॉग्स बोले जाते हैं. नाउ इंडिया बीइंग अ मल्टी कल्चरल मीन्स काफ़ी सारे कल्चर के लोग रहते हैं, एंड मल्टी रिलीजियस, काफ़ी सारे धर्म के लोग रहते हैं. मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, इट सेलिब्रेट्स holidays and festivals of various religions. Means we celebrate the festivals of various religions. The 3 national holidays in India, जो 3 नेशनल हॉलीडेज है इन इंडिया, कौन से हैं वो 3? दैट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. दे आर सेलिब्रेटेड विद zeal एंड एंथुसियाज्म अक्रॉस इंडिया. मीन्स इन तीनों फेस्टिवल्स को बहुत जोश से मनाया जाता है पूरे इंडिया में. हाउएवर विथ द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मैनी ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सीन इन इंडियन वे ऑफ लाइफ. मीन्स काफ़ी सारे चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे इंडियन लाइफस्टाइल में. दैट इज़ फॉर एग्जांपल चेंजेस आर विजिबल इन डाइट. मीन्स हमारा डाइट में कुछ चेंजेस आ गए हैं. अपैरल, कपड़ों के पहनने के तरीके हमारे चेंज हुए हैं, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा. ड्यू टू इंक्रीज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. क्यों हुआ है ये सब? क्योंकि देयर इज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड faster means of transportation. Now globalization has brought about many changes in the social life of the people. Globalization की वजह से there are many changes in the social life of the people. चेंज इज़ इनवाइटेबल, नेचुरल एंड नेसेसरी. लेकिन जो ये चेंज था वो क्या था? नेचुरल था और नेसेसरी था. बट आवर कल्चर एंड हेरिटेज मस्ट बी कंजर्व. पर जो हमारा कल्चर है और हेरिटेज है वो हमको बचाना है, उसको कंजर्व करना है. Man and environment are interdependent and thus along with culture and heritage, its prestige and honor must be preserved under all circumstances. It means man और environment दोनों एक दूसरे के ऊपर interdependent हैं. So and thus along with culture and heritage, कल्चर और हेरिटेज के साथ साथ हमें उसकी प्रेस्टीज और ऑनर को भी प्रिजर्व करना है इन एनी ऑफ दी circumstances. The culture of India, it refers to the way of life of the people of India. जो कल्चर है हमारे इंडिया का वो किसको रेफर करता है कि हम इंडिया में लोग कैसे रहते हैं. रेफर्स टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. कैसी इंडिया के लोगों की लाइफ है. नाउ इंडियंस लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, फूड एंड कस्टम्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री. हर एक जगह फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल उनकी काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस है, लाइक डाइट है, रिलीजियंस है, डांस है, म्यूजिक है, कल्चर्स. सो दीज डिफरेंस यू कैन फाइंड विद इन द कंट्री इट सेल्फ ओनली. द इंडियन कल्चर ऑफन लेबल्ड एज एन अमेलगेमेशन ऑफ सेवरल कल्चर्स. दैट इज इंडियन कल्चर को क्या माना जाता है? इट्स अमेलगेमेशन मीन्स मिक्सअप है सेवरल कल्चर्स का, स्पान अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स and has been influenced by a history that is several millennia old. The people of the rural areas too enjoy this diversities. जो लोग हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो लोग भी इस विभिन्नता को एंजॉय करते हैं. Now diversity is seen in castes, color, creed, languages, culture, tradition, rituals, customs, thinking, beliefs, right from north state of Kashmir to its southernmost counterpart Kanyakumari and from western Gujarat to northern eastern अरुणाचल प्रदेश. मीन्स हमको काफ़ी सारी चीज़ों में विभिन्नता मिलती है. लाइक अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, कलर के लोग रहते हैं, क्रीड, लैंग्वेजेस उनके अलग होती हैं, कल्चर्स उनके अलग हैं, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, थिंकिंग, बिलीफ, कहाँ से लेके फ्रॉम नॉर्थन स्टेट ऑफ कश्मीर, कश्मीर से लेके देखा जाए तो साउथ मोस्ट काउंटर पार्ट्स ऑफ कन्याकुमारी तक, यहाँ वेस्टर्न गुजरात से लेके नॉर्थन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश तक आपको काफ़ी सारी विभिन्नताएं मिलेंगी. द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जो सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है या इकोनॉमिक लाइफ है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर प्लेस. हैंस इंडिया इज़ नोन एज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इसके लिए हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. मीन्स हमको इंडिया में बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर. I hope each and everything is very clear to you. In the next session, we will continue with our new chapter. Thank you.